بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. روى الإمام أحمد في المسند وأهل السنن الأربعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وزاد أبو داود والنسائی في آخره یا حی یا قیوم. امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے. اسی طرح امام ابو داود، امام ترمذی اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنا، وہ یہ دعا کر رہے تھے: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یہ کہ بے شک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. المنان، تو ہی احسان کرنے والا ہے، انعام کرنے والا ہے. بدیع السماوات والارض، تو نے ہی زمینوں کو اور آسمانوں کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے بنایا ہے. ذو الجلال، تو ہی عظمت والا، ہیبت والا، کبریائی والا ہے. والاکرام، تو ہی عزت والا، انعام اور فضل والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا: تحقیق تو نے اللہ تعالیٰ سے اس بڑے نام کے ساتھ سوال کیا ہے جس نام کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اس نام کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اور اسی طرح امام ابو داود اور امام نسائی کے الفاظ ہیں حدیث کے آخر میں: یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے. تو امام ابو داود کی روایت کے اندر یا حی یا قیوم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی آخر میں مروی ہیں، وہ بھی الفاظ آخر میں آئے ہیں. وروى ابن ماجة والحاكم وغيرهما عن ابي امامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 3 سور من القرآن في البقرة وآل عمران وطه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا جو بڑا نام ہے جس کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، ان 3 صورتوں میں، قرآن مجید میں 3 صورتوں میں: سورہ بقرہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کے اندر، اور اسی طرح سورہ آل عمران کی دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر وعنت الوجوہ للحی القیوم. تو الحی اور القیوم یہ دعا کے اندر جو آخری الفاظ آئے ہیں، یہ نام ان 3 صورتوں کے اندر آیا ہے. مطلب کہ یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے ہیں، جن ناموں کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. وروى الامام احمد وابو داود والترمذی عن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. اسی طرح امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اور امام ابو داود، امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. و فاتحۃ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس روایت میں سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بڑا نام ہے وہ ان 2 آیتوں کے اندر ہے. پہلی آیت: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس آیت کے اندر جو نام ہے الرحمن الرحیم، اور اسی طرح واحد بھی ہے. اور وفاتحۃ آل عمران، یعنی آل عمران کے شروع میں دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس روایت کے اندر الحی القیوم، اور پہلی جو آیت ہے اس کے اندر الرحمن الرحیم. تو ان کے متعلق بھی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے ہیں جن کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. وروى اصحاب السنن وابن حبان عن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اسی طرح اصحاب سنن اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، ایک صحابی کو سنا، وہ یہ دعا کر رہے تھے: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی اکیلا معبود ہے. الاحد، تو اکیلا ہے. الصمد، تو بے نیاز ہے، یعنی ہر چیز تیرے محتاج ہے، تو کسی چیز کا محتاج نہیں. الذی لم یلد ولم یولد، تو ایسا ہے جس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی تیری کوئی اولاد نہیں. ولم یولد، اور تجھے کسی نے نہیں جنا، یعنی تو ماں باپ سے بھی پاک ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور تیرے جیسی کوئی چیز نہیں، تیرے برابر کوئی چیز نہیں ہے.
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, उस सहाबी के बारे में फरमाया, तहकीक इसने अल्लाह ताला से उस बड़े नाम के साथ सवाल किया है, अजीम नाम के साथ, जिस नाम के साथ अगर दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल हो जाती है। अगर अल्लाह ताला से सवाल किया जाए तो अल्लाह ताला दे देता है। शेख हाफिज़हुल्लाह कहते हैं कि ये बात साबित हदीसें हैं अल्लाह ताला के बड़े नाम के बारे में, जिनके साथ अगर दुआ की जाए तो दुआ कबूल हो जाती है, सवाल किया जाए तो अल्लाह ताला दे देता है। इसीलिए जो है वो इस बड़े नाम और उसकी जो है वो पहचान, उसकी मारिफत के मुताल्लिक़ जो है अहले इल्म ने जो है बड़ा अहतमाम किया है, बहुत बड़ा अहतमाम किया है। इसलिए उन्होंने इसमें जो है मुख्तसर और बड़ी बड़ी किताबें लिखी है। तो इस नाम में जो मशहूर अक़वाल हैं कि अल्लाह ताला के जो बड़े नाम हैं, उनमें यह है कि अल्लाह ताला का जो बड़ा नाम है वो अल्लाह है, यानी अल्लाह। और कुछ उलमा ने अल-हय्य अल-क़य्यूम, और इसी तरह कुछ उलमा ने अर्रहमान अर्रहीम। तो बहरहाल ये जो नाम है मुख्तलिफ़ अहादीस में आए हैं, जिनके मुताल्लिक़ कहा गया है कि अल्लाह ताला के बड़े नाम हैं, जिनके साथ दुआ की जाए तो कबूल हो जाती है, सवाल किया जाए तो अल्लाह ताला दे देता है। तो जिसने जो पीछे दुआएँ गुजरी हैं, जितनी भी अहादीस ये इस मौजू में अभी जो गुजरी हैं, तो उनके साथ अगर दुआ की तो वो गोया के इसमें शामिल हो गया। जैसे कि पहली दुआ हमने पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अन्ता वहदका ला शरीका लक अल मन्नानु बदीउस समावाति वल अर्द ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम। इसी तरह और दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत अल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जिसने इन दुआओं के साथ अल्लाह ताला से जो है वो दुआ की तो गोया के उसकी दुआ जो है वो अल्लाह ताला कबूल कर देगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बंदे ने अल्लाह के बड़े नाम से दुआ की है, जिससे दुआ की जाए तो कबूल हो जाती है, सवाल किया जाए तो अल्लाह ताला दे देता है। तो अल्लाह ताला के सामने उसके नाम पेश करना, अल्लाह ताला के नामों के साथ दुआ करना, ये बहुत बड़ा फ़ायदेमंद और बहुत बड़ा वसीला है कबूल होने का, और जो है वो दुआ के जो है वो कबूलियत और दुआ के कबूल होने के वाजिब के लिए बहुत बड़ा वसीला है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो है अपने बंदों को जो अपने नामों के बारे में रहनुमाई की है कि उनको सीखें और उसी नामों के साथ जो है अल्लाह ताला से दुआ करें। जिस तरह अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों के साथ उसे तुम पुकारा करें, उन नामों के साथ उससे दुआएं किया करें। इसी तरह अल्लाह का फरमान है कुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, तुम अल्लाह को पुकारो अल्लाह के साथ या रहमान के साथ, जिसके साथ भी पुकारो, यानी तुम पुकारा करें, उसके अच्छे अच्छे नाम हैं। तो इस हदीस के अंदर, इन आयत के अंदर अल्लाह ताला अपने नामों के साथ अपने बंदों को जो है पुकारने की तरगीब देता है। तो अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं वो तमाम नाम जो है वो अच्छे हैं, प्यारे हैं, और तमाम नाम अल्लाह ताला की तारीफ़ और सना पर मुश्तमिल हैं। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने फरमाया अस्माउ रब्बी कुल्लुहा अस्माउ मदहिन, अल्लाह ताला के नाम जितने भी नाम हैं, रब के जितने भी नाम हैं, वो तमाम जो है वो तारीफ़ों वाले नाम हैं। तो इसी तरह जो शख्स कुरान की दुआओं में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की जो दुआओं में गौर करेगा, वो पाएगा कोई भी दुआ जो ख़त्म होती है तो अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नामों के साथ जो दुआएं ख़त्म होती हैं, तो उन नामों का उस दुआ से एक जो है वो रबत होता है, एक ताल्लुक़ होता है, एक मुनासिबत होती है। जिस तरह अल्लाह ताला का फरमान है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए हमारा रब हमसे कबूल करे, बेशक तू ही सुनने वाला और इल्म वाला है। तो अस्समीउल अलीम का इस दुआ से ताल्लुक़ और रबत और मुनासिबत है। इसी तरह रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन, ए हमारा रब हम तुझ पर ईमान लाए, तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हम पर रहम कर, तू ही बेहतरीन रहम करने वाला है। तो इसी तरह जो है वो रब्बना फ़्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन, इसी तरह और भी आयात हैं। तो अल्लाह ताला के नामों के साथ जो इल्म है और अल्लाह ताला की सिफ़त के साथ जो बंदा इल्म रखता है, ये सबसे बड़ा इल्म है और सबसे जो है वो पाकीज़ा इल्म है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है सबसे यानी आला अल्लाह ताला की जो ज़ात है उस ज़ात से इन नामों का ताल्लुक़ है। तो अल्लाह ताला की पहचान और इल्म उसके नामों के साथ, उनके सिफ़ात के साथ और जो है वो उसके अफ़आल के साथ, ये बहुत बड़ा इल्म है, बहुत बड़ा इल्म है। अल्लाह ताला की तारीफ़ उसके नामों के साथ करना, उसकी सिफ़ात के साथ करना, ये बेहतरीन अक़वाल हैं, बेहतरीन जुमले हैं, बेहतरीन तारीफ़ है। तो अल्लाह ताला के जो नाम हैं और सिफ़ात हैं कुरान मजीद में उनका बहुत ज़्यादा ज़िक्र हुआ है, दूसरे जो है मामलात के मुतालिक नामों और सिफ़ात का ज़िक्र ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है कुरान मजीद में और अफजल है और जो है वो बड़ा मकाम है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया वल कुरान फ़ीहि मिन ज़िक्रि अस्माइल्लाहि व सिफ़ातिहि व अफ़आलिहि अक्सर मिम्मा फ़ीहि मिन ज़िक्रिल अक्लि व शुर्बि व निकाहि फ़िल जन्नह। फरमाया कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला के नामों का तज़किरा, सिफ़ात का तज़किरा, अफ़आल का तज़किरा ज़्यादा है, खाने पीने और निकाह इनसे बहुत ज़्यादा है, यानी जन्नत में ये चीज़ें होंगी, लेकिन इनसे ज़्यादा जो कुरान मजीद में तज़किरा है वो अल्लाह ताला के जो है अफ़आल, सिफ़ात और नाम, इनका ताल्लुक़ जो है और तज़किरा जो है वो ज़्यादा है। फिर फरमाया वल आयातुल मुतज़म्मिनतु लिज़िक्रि अस्माइल्लाहि व सिफ़ातिहि अअज़म क़द्रन मिन आयातिल मआद, अल्लाह ताला के जो नाम और सिफ़तें जिन आयात में ज़िक्र हैं उनकी मंज़िलत और क़द्र ज़्यादा है उन आयात के मुताल्लिक़ जो
क़यामत के मुताल्लिक या जो महशर के मुताल्लिक ज़िक्र हैं उनसे ज़्यादा जो है वो उनकी मंजिलत और कदर है जिनमें अल्लाह ताला के नाम है। फ़अज़म आयतन फ़िल कुरान आयतुल कुर्सी, फरमाया कि सबसे बड़ी जो आयत है कुरान मजीद में वो आयतुल कुर्सी है, अल-मुतज़म्मिनतु लिज़ालिक, उसमें अल्लाह ताला के जो है वो नाम है। जिस तरह हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन काब से कहा, अतदरी अय्यु आयतिन फ़ी किताबिल्लाहि अज़म, क्या तुझे पता है कि कुरान मजीद में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? तो क़ाल अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज़रब बियदिही फ़ी सदरी, सीने पे जो है हाथ लगाया, हाथ मारा और कहा, लियहनिकल इल्म अबल मुंदिर, इल्म तुझे खुशामदीद कहे, मरहबन कहे ए अबुल मुंदिर। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक की कि ये सबसे बड़ी आयत है कुरान मजीद में। तो इस आयत में जो है अल्लाह ताला के नाम ज़िक्र हैं, अल हय्य, अल क़य्यूम और अल्लाह। और अफजल जो सूरत है वो सूरह उम्मुल कुरान, शेख अब्दुल्लाह कहते हैं कि अफजल जो सूरत है सूरह उम्मुल कुरान यानी सूरह फातिहा। जिस तरह हदीस में आया है सईद बिन मुअल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से, हदीस जो है वो सही हदीस के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु लम यंजिल फ़ित तौरात वला फ़िल इंजील वला फ़िज़ ज़बूर वला फ़िल कुरान मिस्लुहा, यानी तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान में इस जैसी सूरत नहीं। वही सबउल मसानी वल कुरानुल अज़ीम अल्लज़ी ऊतीतु, यही सबउल मसानी सूरत है और कुरान अज़ीम जो में दिया गया। तो इस सूरत में जो है वो अल्लाह ताला के नाम और सिफ़तें बहुत ज़्यादा हैं, यानी क़यामत के तज़किरे से, महशर के तज़किरे से, आखिरत के तज़किरे से ज़्यादा इस सूरत के अंदर, सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला के नाम हैं। जैसे रब है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब नाम है, इसी तरह जो है अर्रहमानुर रहीम है, इसी तरह जो है मालिक है। तो अल्लाह ताला के जो नाम है वो इसमें ज़्यादा ज़िक्र हुए हैं। इसी तरह सही हदीस के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल हुवल्लाहु अहद तअदिलु सुलुसल कुरान, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के जो है वो तीसरे हिस्से के बराबर है, यानी तीसरे हिस्से का सवाब मिल जाता है जो एक बार कुरान सूरह इखलास पढ़ लें, यानी 10 पारों के बराबर है। इसी तरह एक हदीस में है जो सही हदीस है, जिसको रिवायत किया है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी उस शख्स को जिसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद के बारे में, इन्नी ला उहिब्बुहा लिअन्ना सिफ़तुर रहमान। तो आपने बिअन्नल्लाह युहिब्बुहु कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है, तेरी मोहब्बत इस सूरत के साथ तुझे जन्नत में दाखिल कर देगी। तो सूरह इखलास में भी जो है वो अल्लाह ताला के नाम है, अहद है, अस्समद है और जो है अल्लाह है। तो अल्लाह ताला के जो नाम जिन दुआओं में और जिन आयत में आते हैं वो आयतें बहुत अजीम आयतें होती हैं, बड़ी अजीम दुआएँ होती हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ जाना, अल्लाह से ताल्लुक़ रखना, उसके जो है वो नामों के तरीके से और सिफ़ात के तरीके से, इसका बहुत बड़ा शान और बड़ा अजीब है। तो उसके लिए गोया कि दुनिया की सआदतें लाई जाती हैं, हालांकि वो शख्स चाहे बिस्तर पर हो, बगैर किसी थकावट, बगैर किसी जो है वो परेशानी के, अल्लाह ताला उसको सुकून देता है, उसकी दिल जो है वो बुलंद होती है और बड़ा मकाम हासिल करती है। और वो जो है वो आमाल में ज़्यादा ना भी जाए लेकिन अल्लाह ताला के नामों के साथ जो उसका ताल्लुक़ है तो ये उसको बड़ी मंजिलों तक ले जाते हैं। जैसे कि बंदा हर वक्त अल्लाह ताला का नाम अस्समी अल बसीर, यानी वो हमें देख रहा है, वो हमारी बातें जो है वो सुन रहा है और जो है वो हम पर ताकत रखता है, तो बंदा एक लम्हा भी रब से दूर नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला के नामों के मुताल्लिक़ इल्म हासिल करता है। तो अल्लाह ताला के नामों की मारिफत से, उसकी माना हासिल करने से ये हासिल होता है, यानी दिलों में तासीर हासिल करना और उसकी तकाज़ा पे आना। तो ये जो है वो दिलों को जो है वो असर देता है और दिलों को फ़ायदा होता है। मसलन अल्लाह ताला के जो नाम है अज़मत वाले, किबरियाई व तकब्बुर वाले, जलाल और अज़मत वाले, हैबत वाले, तो दिल में जो है वो अल्लाह ताला के लिए ताज़ीम और जो है वो ये हैबत आ जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला के जो नाम है यानी खूबसूरती पर, एहसान पर और रहमत और करम पर, तो दिल में जो है अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत और शौक़ और तारीफ़ों का जज्बा और शुक्र के लिए जो है वो ये चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला के नाम जो है इज़्ज़त वाले और हिकमत वाले, यानी अज़ीज़, हकीम और इल्म और कुदरत वाले, तो दिलों में जो है आजिज़ी और खुशू और इनकिसारी आ जाती है कि अल्लाह ताला हमारी बातें सुन रहा है, इल्म वाला है, कुदरत और ताकत वाला है, हकीम है। इसी तरह अल्लाह ताला के जो नाम इल्म वाले और खिबरत वाले और इहाते यानी घेरने वाले और मुराक़बे वाले, यानी जैसे अल्लाह ताला का नाम रक़ीब है और मुशाहदा, अल्लाह ताला देख रहा है, तो दिल में जो अल्लाह ताला के लिए एक मुराक़बत हासिल हो जाती है, यानी हरकत में और ख़ामोशी में इंसान जो है वो अपनी सोचों और अपनी फ़िक्र को भी जो है वो सही कर देता है, अपने बुरे बुरे इरादों से बच जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमारे दिलों के जो वसवसे हैं वो भी अल्लाह ताला जानता है, तो इससे दिल साफ़ हो जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला के जो नाम है अल-गनी और लतीफ़, तो दिल में जो है वो इंसान जो अल्लाह ताला की तरफ फ़कीर जो है होता है कि मैं अल्लाह का फ़कीर हूँ, अल्लाह ताला की तरफ जो है वो मुस्तरफ़ हूँ। और इसी तरह जो है हर लम्हे में, हर वक्त में, तो ये जो अल्लाह ताला के जो नाम है, प्यारे प्यारे सिफ़ात हैं, तो दिलों में इसकी जो मारिफत आ जाए तो बंदा जो है वो आला मकाम पर और इसी अल्लाह की बंदगी करता है, दुनिया में ऐसा गुजरता है, ऐसे रहता है कि उससे जो है अफजल ज़िंदगी नहीं और अफजल मकाम नहीं और अल्लाह ताला की ऐसी देन ही नहीं, यानी अल्लाह ताला ने जिसको अपने नामों की जो है वो मारिफत और पहचान दे दी, इससे बड़ी कोई अता नहीं। यही जो है तौहीद का रूहानियत है, तौहीद की रूहानियत है, और यही जो है वो इखलास का, ईमान कामिल का जो है वो दरवाज़ा खोल देता है, अल्लाह ताला के नामों की पहचान और मारिफत रखना। तो ये बड़ी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है अता है, दिल को सुकून, दिल जो है वो मुतमईन, सीना खुल जाता है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको फिरदौस नसीब कर देता है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स को, ऐसे लोगों को अपने चेहरे का दीदार और कामयाबी और अपने अज़ाब और सख़त और नाराज़गी से बचा देता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला अपने प्यारे प्यारे नामों को हमें सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें जो है ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अल्लाह ताला के नामों के साथ हम उसे पुकारा करें और उसके साथ दुआएँ क्या करें।
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.